Hello everyone, I am Sudeep Chakraborty and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the concept of discount. Many students they have this doubt regarding discount and its journal entry. So watch this video till the end to clear all your doubts. So what is discount? As we know, discount is a kind of reduction in the price offered by the seller to the buyer. And it is of two types, trade discount and cash discount. So in order to know about the concept of trade discount and cash discount, what is trade discount and what is cash discount, we need to understand the concept of distribution channel. Now, what do you mean by distribution channel? Distribution channel is the medium through which a particular item reaches from manufacturer to the ultimate customer. एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से निकल के मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से निकल के कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो जिस मीडियम के थ्रू वो पहुंचता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट मीडियम इज नोन एज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. फॉर एग्जांपल, अमूल अमूल का फैक्ट्री है सपोज गुजरात में. सो गुजरात से प्रोड्यूस होके, गुजरात से मैन्युफैक्चर होके हर स्टेट में, हर जगह आप अपने घर के पास भी इस अमूल के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. इट रीचेस across the country to every consumer. It is because of distribution channel. So it is the medium through which a product reaches from the manufacturer to the ultimate consumer or customer, we can say. So कौन कौन आता है इस distribution channel में? First comes your manufacturer, then comes your distributor, then comes your wholesaler, retailer, and end में आता है customer. So now let us understand the concept of trade discount. So trade discount is a kind of reduction allowed by the seller as a fixed percentage on the list price. And it is generally offered by the manufacturers to wholesalers and wholesalers to retailers. ये normally consumer के साथ consumer को नहीं दिया जाता. Trade discount जो है ये ultimate consumer को नहीं मिलता. Trade discount जो है ये normally takes place between manufacturer, distributor, wholesaler, retailer. इन्हीं लोगों के बीच में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. इट इज नॉट अलाउड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर नॉर्मली. So it is deducted from the sale price and therefore sales are recorded at net value, that is after subtracting the trade discount. So एक चीज याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग कोई अलग सा जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं. जब भी हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है इन अ ट्रांजैक्शन, जब भी आप देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो पहले हम लोग उस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे एंड जो नेट अमाउंट होगा उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ परचेज और सेल्स. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट से हमको कोई फायदा नहीं पहुंचता है. ट्रेड डिस्काउंट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वही बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन होता है फॉर द सेलर. जब जो परचेज कर रहा है, मतलब होलसेलर या रिटेलर, हुएवर इज परचेजिंग एंड गेटिंग द ट्रेड डिस्काउंट, एंड if the wholesaler is allowing trade discount to retailer, so पहले से डिसाइडेड होता है कि उतना डिस्काउंट तो उसको देना ही है. मतलब होलसेलर अगर अपना सामान बेचना चाहता है टू रिटेलर तो पहले से वो कैलकुलेटेड रहता है कि वो इतना परसेंटेज डिस्काउंट तो देगा ही रिटेलर को, एंड रिटेलर भी मेंटली प्रिपेयर रहता है कि उसको इतना अमाउंट तो मिलने ही वाला है एज डिस्काउंट. ओके, बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट का MRP लिखा हुआ है 100 रुपये. सो आई एम अ रिटेलर. If I'm buying those products from a wholesaler and I'm buying in bulk, normally ये bulk purchase पे दिया जाता है trade discount, small quantity purchase में नहीं मिलता. So obviously I'm buying a huge quantity from wholesaler. I'm buying suppose 500 units from the wholesaler. तो मुझे per unit suppose 20% off मिल रहा है. So I'm getting the product at 80. Suppose I'm getting the product at 80, लेकिन मैं उसको बेचूंगा कितने में? 100 रुपीज में MRP पे, या मैं चाहूँ तो MRP से थोड़े कम प्राइस में भी बेच सकता हूँ. सो दैट डिस्काउंट आई गॉट फ्रॉम द होलसेलर, दिस इज माय ट्रेड डिस्काउंट. सो दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट से ऐसे कुछ नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा फायदा हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि मुझे मिलेगा. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है, बिकॉज दैट इज द रूल. ये तो मिलना ही है, बिकॉज दैट इज माई प्रॉफिट मार्जिन. ये जो ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिलेगा फ्रॉम द होलसेलर वही तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है. मैं कम में खरीदूंगा
होलसेलर से, तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ तो मेरे हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं। सो आई विल बी बाइंग एट अ लोअर प्राइस बाय गेटिंग अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एंड आई विल बी सेलिंग इट at MRP और नियर बाय MRP, 100 या 100 से थोड़ा कम में बेच के अर्न द प्रॉफिट। सो दैट्स वाई ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं जर्नल में। So it is not recorded in the books of accounts since it is a general discount allowed by the manufacturers and wholesalers, and it does not have any financial impact since the buyer always expects to get trade discount on bulk purchase. So ये normal trade norm है. This is the trade norm. Obviously you will get trade discount when you make bulk purchase. Now let us understand about the concept of cash discount. So trade discount is allowed in order to encourage bulk sales. ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ऑन बल्क सेल्स, वेयर एज कैश डिस्काउंट जो है इट इज अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, हर बिजनेसमैन चाहता है कि कैश जितना जल्दी रिकवरी हो सके उतना अच्छा है। नो बिजनेसमैन, इफ यू आस्क, नो बिजनेसमैन वांट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले, किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप ऑप्शन दें तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। वो 100% कैश ट्रांजैक्शन करना चाहेगा। वाई? बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन में देर इज जीरो रिस्क, पैसे डूबने का कोई चांस नहीं रहता। आपने सामान बेचा, आपको पैसे मिल गए, बात खत्म, देर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। वेयर एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा एक रिस्क रहता है पैसे डूबने का। सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू रिकवर द पेमेंट क्विकली, सेलर्स जो होते हैं वो बायर्स को एक कैश डिस्काउंट का लालच दिखाते हैं। तो क्या होता है ना, सपोज मेरे पास एक कस्टमर आया है एंड वो बोल रहा है कि सर मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है, 15 दिन बाद अगर आप पेमेंट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। जो नॉर्मल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको उसको छोड़कर मैं आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दूंगा इफ यू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर आप अभी पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हो या पार्ट पेमेंट करते हो, ठीक है, मैं आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, एंड द पर्पस ऑफ कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द बायर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो अभी आप बोल सकते हैं कि सर आपका तो थोड़ा बहुत लॉस हो गया 5% डिस्काउंट देने के बाद। तो हाँ, थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा लॉस हो रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आई एम लूजिंग, दैट्स राइट, बट पैसे तो आ रहे हैं ना, मेरा रिस्क भी तो कम हो रहा है। अगर मैं उनको अला करूं क्रेडिट 15 दिन के लिए, तो चांसेस है कि वो 15 दिन बाद शायद पे ना कर पाए। ये भी तो चांसेस हैं कि मेरा 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 पूरा का पूरा पैसा डूब जाए। इन दैट केस मुझे ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर मैं अभी थोड़ा अपना रेवेन्यू लॉस करके, थोड़ा अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके अगर पूरा का पूरा पेमेंट ले आता हूँ या मैक्सिमम पेमेंट ले आता हूँ, देन दैट इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू अलाउइंग क्रेडिट फॉर 15 days। ठीक है। सो अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द सेलर एंड गेन फॉर द बायर। जैसे मैंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट इज एक्सपेक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ ट्रेड नॉर्म, वो तो मिलना ही है। सो इट इज नॉट अ गेन or not a loss for the, it is not a loss for the seller and not a gain for the buyer. So it is expected, it is a trade norm, so that's why we don't record it in journal entry separately. हम लोग डायरेक्ट उस अमाउंट को माइनस करके नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं परचेज और सेल्स while passing the journal entry. But cash discount हम लोग बोल सकते हैं कि it is an expense for the seller and gain for the buyer. तो कैश डिस्काउंट का एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहता है। So that's why cash discount is recorded in the journal, and it is in the nature of nominal account. So cash discount allowed is debited as it is an expense, and cash discount received is credited as it is a gain. So whenever you allow cash discount, you have to debit it, and whenever you receive cash discount as a buyer, you have to credit it. So let's have a look at this problem. Please read the questions. So goods purchased of list price 25,000 from Mohan at a discount of trade discount of 20%, and then 25,000 from Mohan at trade discount of 20% and 5% cash discount. Please read the question. Okay, so now let us discuss the journal entries. See, the first case, हमने goods purchase किया from Mohan at 20% trade discount.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अलग से जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट एंड 25,000 से हमने डायरेक्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। सो नेट अमाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड। इफ यू सी, वी हैव रिकॉर्डेड द नेट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट। सो दूसरा, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, trade discount is allowed when goods are purchased in large quantities, and trade discount is allowed as a deduction from the value of purchases, and net amount is shown in the books of accounts. And always remember, trade discount is never ever shown separately, like in case of cash discount. Okay, so we आते हैं next question, next entries की तरफ। सो दूसरा एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिटेड। देखिए दूसरे ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, साथ साथ कैश डिस्काउंट भी है। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों हैं, तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। ओके, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। उसके बाद जो नेट अमाउंट रहता है उससे आपको कैश डिस्काउंट को चार्ज करना है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो लोग एक ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देखते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि पहले क्या करना है, पहले किसको डिडक्ट करें। सो द रूल इज, फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट and then you have to deduct the cash discount from the remaining amount. Okay, and trade discount is not recorded, whereas cash discount is recorded. So in the third transaction क्या हो रहा है ना, थर्ड ट्रांजैक्शन में पेमेंट 60% हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू बैंक अकाउंट। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है ना, 60% पेमेंट हो रहा है। तो डिस्काउंट जो है हम लोग थोड़ा देख लेते थर्ड ट्रांजैक्शन में। थर्ड ट्रांजैक्शन ये था, गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फ्रॉम मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। सो गुड्स परचेज हुआ है 25,000 का, जिसमें से 40% से पेमेंट हुआ है बाय चेक। दैट मीन्स 60% इज ऑन क्रेडिट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो पूरे अमाउंट पे मिलेगा, इंटायर अमाउंट ऑफ 25,000 पे विल गेट ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑन द इंटायर अमाउंट ऑफ 25,000, बट कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड ओनली ऑन द अमाउंट पेड, that is 40%. 40% amount have been paid by check. Okay, whether check or cash doesn't matter, जितना अमाउंट पे हुआ है उसी पे मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो सिंस 40% have been paid, तो कैश डिस्काउंट will be allowed on 40%, एंड जो रेस्ट 60% है जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उस पर कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। सो लेट अस सी, so purchase account debited 25,000 minus 20% trade discount, so that comes to your 20,000. Then Mohan account debited 20,000 into 60%, that is credit, 60% is your credit, ये हो गया 12,000. ओके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 20,000 रहता है। 20,000 में से 60% इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बिकॉज 40% हैव बीन पेड एंड 60% हैज नॉट बीन पेड, 60% इज स्टिल ड्यू। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 40% पे। देखो 40% पे किया है हमने, तो 20,000 का 40% कितना है वो निकालना है हमको, और उसका 5% निकालना है। सो 20,000 का 40% विल बी 8,000. So we have paid 8,000 only. We have made the payment of 8,000. So 8,000 by 5% cash discount will receive, and that comes to your rupees 400. And finally, how much we have paid after deducting the discount? 8,000 minus 400, so 7,600. So to sum up this entry, first हमने क्या किया, first हमने purchase को record किया. Okay, purchase account debited, that is 25,000 minus 20% trade discount. Then हमने मोहन के अकाउंट को रिकॉर्ड किया, जो क्रेडिट वाला पोर्शन है उसको रिकॉर्ड किया टू मोहन अकाउंट। मोहन इज अ डेब्टर नाउ। ओके, सॉरी, मोहन इज अ क्रेडिटर नाउ। मोहन से हमने परचेज किया है, सो मोहन के पोर्शन को रिकॉर्ड किया। मोहन इज अ क्रेडिटर, उसको इतने पैसे देने हैं हमको। सो टू मोहन्स अकाउंट
20,000 into 60%, 12,000 is due to Mohan. देन हमने डिस्काउंट रिसीव किया है ऑन 40% पेमेंट. सिंस हमने 40% पे किया है तो डिस्काउंट भी हमको मिलेगा, कैश डिस्काउंट भी हमको मिलेगा ऑन 40%. जैसा मैंने बताया, कैश डिस्काउंट ओनली कैश पेमेंट पे ही मिलता है. जितना आपने कैश पेमेंट किया होगा उतने पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, एंटायर अमाउंट पे नहीं मिलेगा. क्रेडिट डिस्काउंट जो है वो एंटायर अमाउंट पे मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली कैश पेमेंट पे ही मिलता है. अगर आपने 100% पे किया है तो 100% अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा. अगर आपने 30, 40, 50 जितना अमाउंट पे किया है उतने ही अमाउंट पे कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा. सो 20,000 में से हमने 40% पे किया, दैट कम्स टू 8,000, एंड 8,000 का 5% होता है 400, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 400. एंड फाइनल पेमेंट कितना हुआ? 8,000 माइनस डिस्काउंट, that is 8,000 minus 400, final payment is your 7,600. Okay, and now let us have a look at the last entry. So last transaction was like this. Last transaction was goods purchased of list price 25,000 from Mohan, less 20% trade discount and 5% cash discount. Bit number 4 I'm talking about. So हमने परचेज किया 25,000 फ्रॉम मोहन, जिसमें से 20% है ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% है कैश डिस्काउंट. एंड पेमेंट कितना हुआ है? पेमेंट हुआ है 70%. दैट मीन्स 70% इज पेड, 30% इज ऑन क्रेडिट. एंड उस 70% का हाफ पेमेंट हैज बीन मेड बाय चेक. सो इट्स अ बैंक ट्रांजैक्शन. सो लेट्स सी. परचेज हुआ है, purchase has been made for rupees 25,000. So 25,000 minus 20%, that is trade discount, that comes to your 25,000 minus trade discount, that comes to your 20,000. Next, Mohan account 20,000 into 30%. 20,000 into 30%, that means 30% is your credit. हमने 70% पे किया है, 30% पे नहीं किया है, तो मोहन जो है वो हमारा क्रेडिटर हो गया. कितने अमाउंट के लिए? 30% के लिए वो हमारा क्रेडिटर है. सो उसको कितना ड्यू है? 20,000 का 30% इज ड्यू टू मोहन. सो दैट कम्स टू योर 60,000. एंड पेमेंट कितना हुआ है? 70% हैज बीन पेड, तो कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड ऑन 70%. सो 20,000 का 70% होता है 14,000. तो 14,000 का हम लोग अगर 5% निकालें तो दैट कम्स टू 700 रुपीज़. So discount received is 700 rupees. So final payment कितना हुआ? 14,000 minus discount 700 rupees, और उसका 50% has been paid by cash, so 6,650, and 50% by check, so 6,650. Okay. So I hope you are clear now about the concept of discount. If you have any doubts, then obviously you can connect with me. You can ask me your doubts through my Instagram channel. You can message me on Instagram, and I have also provided my WhatsApp number, my official WhatsApp number. You can connect me. You can contact with me through my official WhatsApp number. You can also connect with me on Facebook, and you can also join my Telegram channel to get all the PDF copies, PDF notes of my videos. So that's it for today. See you again in the next video. Thank you.